Before starting today's topic, dear students, I would like to just give brief introduction of EHSSM2. So, dear students, already information is provided to you people, but I will let you know the blueprint of it. Blueprint means you must have seen your UT1. That would be same. But dear student, just look at first point that you are involved in intensive study. Any line, any word can be asked in EHSSM2 as per prescribed syllabus. And if we look at blue pattern, one question, four choices, and you will have to look at the right choice. It's not easy to just choose right choice unless or until you will study deeply. Now, next step, you have to look at this time. Your paper will be of 1.5 hours instead of 2 hours. The test will be of 1.5 hours instead of 2 hours. So I think the basic message I want to give is intensive study of each and every point. If any chapter is with historical background, just days, dates, everything, timeline must be in front of you if you want to score well in EHSSM2. So I think crystal clear about the brief introduction of EHSSM2. Be prepared for it. So now let us begin today's topic. We will start with very fine topic, that is voice. But before that, I think you should be crystal clear regarding each and every point of each and every test. Tense is very important. So already it is in this syllabus also, and it was in previous syllabus also, that is UT1 syllabus and EHSSM2. I think we are done in details. So now look at the voice. So active voice, passive voice बोलते हैं, पर असली नाम तो इसका voice है ना. Then it is up to you whether we are converting it into active voice or passive voice. So the topic for today is voice. I think crystal clear about today's topic. Before that, knowledge of tenses is must. Make sure that you are very perfect in tenses and you are preparing yourself for this EHSSM2, and this topic is part of this test also. Particular topic was part of UT1 also because it is one of the prominent topics so far as grammar is concerned. Entire grammar is based upon it. Now let us move for the basic concept. Deep into what is voice. Let us start. Now just look at तो voice क्या होती है वैसे, अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करें आवाज, तो नॉट जस्ट लुक एट द थिंग, किस आवाज की हम बात कर रहे हैं. दो तरीके की हमारी जो वॉइस होती है, एक एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस होता है. यू शुड बी क्रिस्टल क्लियर अबाउट दैट. तो आप छोटी क्लासेस से ही इसको पढ़ते आ रहे हैं, बट राइट नाउ it is senior secondary class. Deep into this particular concept. इस वॉइस को जानने से पहले, इस टॉपिक को डिटेल लेवल से, इस कॉन्सेप्ट को डिटेल लेवल को समझने से पहले, we must be able to look at the base of subject. पहले हमें सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. What is subject? Then we will be able to recognize this particular topic in a fine way. Now just look at the thing. अब देखिए सब्जेक्ट बड़ा आसान है कहना कि कर्ता. तो अब इसमें वॉइस में the things become very different. You should be able to look at a very different order. तो बेटे अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे तो we have to look at कि जितने भी दुनिया में
लिविंग और नॉन लिविंग है, उसको जो कि हैंडल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जो कर्ता का काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. So now just look at the base. If we look at the thing, अब सब्जेक्ट मैंने कहा जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग है, we consider subject is there. So now just look at the thing. अब फिर इसका मतलब हमारे पास क्रिस्टल क्लियर पिक आ गया ना, सब्जेक्ट लिविंग भी होता है और सब्जेक्ट नॉन लिविंग भी होता है. Start writing the things. Just your pencils, your registers must be with you to look at this concept in a detailed way. So now, मैंने कहा कि सब्जेक्ट लिविंग भी होता है, नॉन लिविंग भी होता है. Now just look at the live example. अब लिविंग होता है और डूअर होता है. एक होता है कि लिविंग भी है और डूअर भी है, और लिविंग नॉन डूअर. Now just look at this particular point. I think the differentiation between two types of subject is crystal clear: living, doer, non-living, non-doer. Now just look at the base to understand the things in a better way. You have to look at this particular point. अब अगर living है doer, जो living उसकी capacity होती है, उसका रोल 10% होता है, और जो जिस काम को कर रहा होता है, that plays 90% role. What is 10%? What is 90%? You will be able to recognize the fact very early through examples. अब non-living है 10%, non-doer 90%. So now just look at the details with example. I think जो दूसरा point आज के टॉपिक का है, जो सब्जेक्ट है, already I have told you people, so two types, living और non-living. अब लिविंग का मतलब सिर्फ लिविंग नहीं है, लिविंग उसकी जो है, यानी उसका जो सर्वाइवल है, जो उसकी लाइफ स्टेट है, दैट विल प्ले 10% रोल. और कर क्या रहा है डूअर, दैट विल प्ले 90% रोल. तो यहाँ सपोज नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग भी है अगर, तो 10% रोल है नॉन लिविंग का, उसकी नॉन लिविंग कैपेसिटी का देयर इज ओनली 10% रोल, और नॉन डूअर 90%. Now, I think crystal clear about voice, crystal clear about active voice, passive voice. यानी ब्रीफ इंट्रो की बात कर रही हूँ, अभी डिटेल में हम जाएंगे. सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता. आई थिंक क्रिस्टल क्लियर. मैंने कहा कि दुनिया में जितनी भी चीज, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, जो कुछ ना कुछ कर्ता का काम कर रही है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. ऑलरेडी मैंने कहा कि लिविंग plus doer, non-living plus non-doer. I think crystal clear about this particular fact. Now look at the examples to deep into this concept. इस concept को बेटा डिटेल में जाने के लिए चलते हैं कि कहाँ पे चलते हैं हम. We will be able to look at the examples. बिना एग्जाम्पल्स के you can never ever be able to understand any topic, dear students. Take care of this particular point. अब मैंने लिविंग सब्जेक्ट बोला था और डूअर, यानी if we interpret the word this subject, automatically just look at the live example of living. तो लिविंग में क्या है, सपोज हम कहते हैं राम eats mango, full stop. So now just look at the things. Similarly, just look at non-living or non-doer. So just look at the example of it. So if we look at the example of this particular second form of subject, we have to look at the things. A mango is eaten. So I think you are crystal clear about the live example. Ram eats mango. अब दूसरा नॉन लिविंग का, and mango is eaten. Now just look at, अब देखिए राम लिविंग है, डूअर भी है वो, यानी 10%
प्लस 90%, 100% रोल है इस सेंटेंस में राम का। राम ईट्स मैंगो। तो अब ये देखिए, ये सब्जेक्ट वर्ब, ये आपका V1 प्लस SES जो whatever the things are, और is an article and mango is object. तो आपको ये सेंटेंस आप क्लियर हो चुका होगा। यहाँ लिविंग जो है वो अपना बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। इंटायर गेम इज इन हिज हैंड्स, क्योंकि वो खा रहा है यानी मैंगो। तो आई थिंक क्रिस्टल क्लियर अबाउट द फर्स्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आई थिंक सब्जेक्ट इज प्लेइंग वेरी फाइन रोल टू लुक एट द थिंग। सारा जो एक्सरसाइज है, सारा जो यानी एक्टिविटी दैट इज डन बाय द सब्जेक्ट। तो इसके ऐसे केस पे हम वी आर एबल टू लुक एट द थिंग की एक्टिव वॉइस, यानी इस अगर सब्जेक्ट एक्टिवली रोल प्ले कर रहा है और तो we have to look at that particular point that we are able to look at very fine concept कि हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं, बेसिकली टेंस भी बोला जाता है। तो आई थिंक क्रिस्टल क्लियर सो फार एज दिस पर्टिकुलर सेंटेंस और फर्स्ट form of subject is concerned, that is living form। तो बेटे आपको क्या ख्याल रखना है कि जब भी हमने एक्टिव से पैसिव बनाना है, अगर ये वाला एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, यानी जो सब्जेक्ट है, if the subject is playing 100% role, so we have to look at the things in a very fine order। तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने इस केस में वी हैव टू लुक एट जब सब्जेक्ट से, यानी हम इसको अगर एक्टिव फॉर्म में देखेंगे, एक्टिव फॉर्म में जब वो होगा तो इसमें V1 भी आ सकता है, V2 भी आ सकता है, V3 भी आ सकता है, V4 भी आ सकता है, V5 भी आ सकता है। यानी हमने सबसे पहले हमें पहचान होनी चाहिए कि एक्टिव फॉर्म, ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस तब होगा जब जो मेन डूअर होगा, जो सब्जेक्ट होगा, उसका यानी सिर्फ कैपेसिटी से नहीं होगा कि हाँ वो सब्जेक्ट है, लिविंग है। जब वो डूअर का रोल 90% रोल अच्छे तरीके से कर रहा होगा, वी विल बी एबल टू लुक एट दैट पॉइंट दैट इज एक्टिव वॉइस। अब कोई भी सेंटेंस बना के यू शुड बी एबल टू लुक एट द प्रैक्टिस सेशन, यू कैन क्रिएट योर प्रैक्टिस सेशन की एक्टिव वॉइस क्या। तो जितने भी बेसिक सेंटेंसेस हम बोलते हैं, कन्वर्सेशन होता है हमारा, particularly that is done in active voice। तो एक्टिव वॉइस कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो चुका होगा। यू शुड बी एबल टू लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब चलिए दूसरा फॉर्म। दूसरा मैंने कहा कि सब्जेक्ट नॉन लिविंग भी होता है, नॉन डूअर भी होता है। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, अ मैंगो इज ईटन। अब ये देखिए यहाँ पे मैंगो क्या है, मैंगो जो है वो नॉन लिविंग है और वो नॉन डूअर भी है, क्योंकि मैंगो अपने आप को खुद नहीं थोड़ी खाता है, कोई उसको खा रहा होता है, चाहे वो राम हो, चाहे वो श्याम हो, चाहे वो सीता हो, चाहे वो गीता हो। तो यू हैव टू लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये नॉन डूअर है और नॉन लिविंग भी है। तो यहाँ इस हमने लगाया दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब और जिसको हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। So you have to look at this point. If we look at this particular one, this is a verb. तो V3 लगता है। तो जब पैसिव वॉइस होगी बेटा, जब हमें रिकग्निशन करनी होगी या हमें पैसिव वॉइस में एक्टिव को कन्वर्ट करना होगा, आंखें बंद करके सोच लेना हेल्पिंग वर्ब प्लस V3। तो आई थिंक योर क्रिस्टल क्लियर सब्जेक्ट नो लिविंग स्टेट में यहाँ पे है। Now, I think crystal clear so far as second form of subject is concerned। अगर वो नॉन लिविंग होता है, नॉन डूअर होता है, automatically we have to look at that particular point that it is passive voice। तो इसको अब ये एक्टिव वॉइस
और पैसिव वॉइस, ये कॉन्सेप्ट आप देख लेना आपको क्लियर हो चुका है या नहीं। अदरवाइज चाहे तुम 50 बार एक्टिव पैसिव करते रहना, you could never ever be able to understand that thing. So I think crystal clear आपको this particular point। देखिए एक्टिव वॉइस है तो आपके बंद करके हमें पता होना चाहिए V1 भी जा सकता है, V2 भी हो सकता है, V3, V4, V5। तब पैसिव वॉइस है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के साथ सिर्फ V3 लगता है। I think crystal clear up to this particular point। तो अब हम just look at the next concept। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। If you are any doubt, जरूरी नहीं है कि 30 मिनट्स में तुमने पूछना है। तुम्हारे पास खुला ट्रैक है, कॉन्टेक्ट नंबर हमारे पास है। At any moment you can make query। हो सकता है कि आपकी क्वेरी का इमीडिएट आंसर ना मिले तुम्हें, but you will be able to get the answer very early। एक बार होता है sometimes we are busy to look at the thing। तो आपको ये देखना है कि अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, you can just make query। सिर्फ यहाँ 5 मिनट के क्वेरी सेशन से you will not be able to look at। Now next step, just look at। अब जरा ध्यान से इस बात को लिख लीजिए या सुन लीजिए। Now अब ये मैं सेंटेंस बनाती हूँ यहाँ पे, you are bitter। We look at this। तो you are bitter। अब देखिए just look at this concept। तो यहाँ you सब्जेक्ट है और are हेल्पिंग वर्ब है, that is V3। अब देखो यहाँ पे you जो है वो लिविंग जरूर है सब्जेक्ट, लेकिन सिर्फ लिविंग लिविंग ही है, डूअर नहीं है, ये नॉन डूअर है। यहाँ इसका रोल नहीं है। मैंने कहा लिविंग 10% रोल होता है, वो कर क्या रहा है वो 90% होता है। अब यू आर, तो यहाँ ये एक्टिवली रोल जो है इसका है ही नहीं। somebody is beating the subject। तो ये हम इसलिए, तो हम क्या कहेंगे, that is passive voice। यहाँ पे तुम्हें नजर आ जाए कि जो सब्जेक्ट है वो एक्टिवली प्ले नहीं कर रहा रोल, और जरूरी भी ये नहीं कि बाय लगता है। कई कई सेंटेंसेस में व्हाइल वी कन्वर्ट एक्टिव इनटू पैसिव देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ बाय। I think crystal clear about third example to clarify the basic concept of active and passive। If we look at the second name of it, that is voice। Now just look at the next step। ऐसे examples हम ले सकते हैं। We are able to look at number of examples। So now just look at the basic concept। देखिए when we don't have any subject or don't want to talk about the subject, then we use passive voice। तो जब हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं होता, तो सेकेंड पॉइंट ये है, एक तो है कि जब हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं होता, दूसरा पॉइंट है कि हम सब्जेक्ट को यूज नहीं करना चाहते। तो यू आर बीटन बाय, कुछ नहीं हाईलाइट किया, नथिंग इज हाईलाइटेड। तो जस्ट लुक एट दिस थिंग। When we never want to talk about the subject, then we use passive voice। तो उस केस में बेटे passive voice ही यूज होता है। There is no role for this particular first concept, that is active voice। तो I think crystal clear। इसको क्रैमिंग मत कर लेना, अगर बाय लगेगा ये लगेगा, नो। एक बड़ा डीप कॉन्सेप्ट है। इस डीप कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यू रिक्वायर practice plus listening of lectures in a very fine order। So I think crystal clear about passive। So now just look at the next point for today। बेस आपको क्लियर हो चुका होगा। वॉइस, वॉइस कितने तरीके की होती है, एक्टिव और वॉइस। एक होती है पैसिव। एक्टिव कब होती है, अब डूअर जो सब्जेक्ट और डूअर, उसके जो दो रोल होते हैं, अगर वो दोनों रोल अच्छे तरीके से अदा कर रहा है, यानी अगर
सब्जेक्ट जो है 10% सब्जेक्ट की वैल्यू है, वो 90% वो क्या कर रहा है उसकी वैल्यू है। और अगर वो 100% वैल्यू अपनी बना लेता है अपने अपनी whatever the activity he or she is doing, automatically we are able to look at that particular point, that is active voice. तो पैसिव में ऑलरेडी मैंने एग्जांपल दे दिया, आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ पैसिव वॉइस, यानी नॉन लिविंग सब्जेक्ट होता है और साथ में यानी नॉन लिविंग होने की उसकी 10% वैल्यू है और नॉन डूअर होने की 90% है। वी हैव जस्ट been able to look at this particular concept at a very deep level. तो अगर हम सब्जेक्ट के बारे में कोई हाईलाइट नहीं करना चाहते, यहाँ सब्जेक्ट नहीं होता, तो आंखें बंद करके we can peep deep into that concept that it is passive voice. Now just look at the things. अब ऑलरेडी मैंने इंट्रो में बता दिया ना, peep deep into कि क्या होती है एक्टिव वॉइस, क्या होती है पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव, ये आई थिंक मीनिंग इसका पहले तुम्हें मीनिंग पता होना चाहिए। एक्टिव आई थिंक यू आर क्रिस्टल क्लियर, इज द वेरी कॉमन वर्ड, and passive we are able to look at this particular word also in a very fine order. Now just look at the details of this. क्या किस सेंटेंस को हम एक्टिव बोलेंगे, क्या उसकी स्ट्रक्चर होता है जब एक्टिव होता है, how we are doing the structure of active and passive in a very detailed way. अब डिटेल में चलिए कि हमें स्ट्रक्चर कैसे लिखना है। तो देखिए, if we look at the things, we have to look at a very fine order। पहले we have to look at the details कि हमें हर सेंटेंस की फॉर्म को देखना है, सिर्फ एक नहीं, सिंपल। देखिए सिंपल सेंटेंस होता है, जब हमने टेंस किए थे हर टेंस के हमने सिंपल सेंटेंस बनाया, देन हमने इंटरोगेटिव बनाया, देन नेगेटिव बनाया, देन इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाया, और WH फैमिली वाले जो सेंटेंस थे we had done nothing. So we have to look at the different forms of sentences. Oh dear students, just look at the thing. अगर हमारा एक्टिव है क्या स्ट्रक्चर होगा बेटा, जब हमारा एक्टिव है we have to look at the structure in very different order। तो हमारा सब्जेक्ट होगा पहले, then helping verb होगा, फिर होगा मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है बेटा, नोट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। तो नाउ जस्ट लुक एट द थिंग्स। और अगर if we look at the subject of object, while we make conversion from active to passive, so we have to look at the things। so subject will become object and object will become subject। पहला रूल स्ट्रक्चर को करने से पहले, ऑलरेडी मैंने आपको एक्टिव का स्ट्रक्चर बता दिया। जब हम ये कर रहे हैं एक्टिव वॉइस, उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। Now look at the thing in a very detailed way, write down the things। Subject takes place of object and object takes place of सब्जेक्ट। सबसे पहला स्टेप है जब हमें एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन करना है, पर आपको इससे पहले यू मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर अबाउट द स्ट्रक्चर। पहले स्ट्रक्चर को देखना है, स्ट्रक्चर से पहले भी कॉन्सेप्ट को देखना है, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन अ वेरी फाइन ऑर्डर। नाउ जस्ट लुक एट द थिंग। और सिमिलरली अगर हम पैसिव वॉइस करते हैं, पैसिव वॉइस में क्या होता है, object becomes subject and subject becomes object। Now just look at the thing। I think form or structure of this active voice is crystal clear, और उसका स्टेप आपको क्लैरिफिकेशन हो चुका होगा कि subject takes form of object and object takes form of subject। Now just look at the things। जब हमने एक सेंटेंस मैंने पहले एग्जांपल दिया था, लेट अस मूव विद दैट। राम ईट्स
a mango. Just look at this part. मैंने आपको इंट्रो दिया था एक्टिव वॉइस का, तो उसमें मैंने अभी अभी आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। अब देखिए राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, ईट्स है यहाँ पे, दिस इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है या सिंपल पास्ट टेंस होता है, वी विल डू इन डिटेल, पर इसका मैं एक फिल्म बता रही हूँ, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता जब एक्टिव रोल प्ले कर रहा होता है, जब वो एक्टिव फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे V1 plus S, because if we look at Ram's third person singular, already I have told you that this article and mango is object. तो आपको क्लियर हो चुका होगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट, इन दोनों का दूसरा नाम भी है। सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोला जाता है एंड सिंपल पास्ट को पास्ट इंडेफिनिट भी बोला जाता है, और सिंपल फ्यूचर को फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोला जाता है। यू शुड बी क्रिस्टल क्लियर अबाउट द टू नेम्स of this particular tense, that is simple and indefinite. Now just look at this particular point in a very systematic way. अब देखिए सब्जेक्ट तो ऑटोमेटिकली ये सिंपल प्रेजेंट है, तो ऑटोमेटिकली हेल्पिंग वर्ब नहीं है, V1 plus SES है देन ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर क्लियर हो चुका होगा तुम्हें एग्जांपल्स के साथ। अब चलते हैं, हमने कहा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, बातों से नहीं बेटा, बातों से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकली देखिए कैसे बनता है। So now just look at passive voice. अगर मैं इसी को कन्वर्शन करती हूँ passive voice में, you should be able to look at the thing. तो अब इसका हमें एविडेंस मिल गया, अब हमें इसको सब्जेक्ट बनाना है, a mango, a mango। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर आपको हो चुका होगा। a mango is eaten by Ram। तो इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और ईटन मेन वर्ब है, और यू हैव टू लुक एट द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, राम क्या बन गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए स्ट्रक्चर देखिए पहले पैसिव का, देखिए पैसिव यू हैव टू लुक एट द थिंग, इसमें भी सब्जेक्ट होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है प्लस V3 होता है, देन ऑब्जेक्ट होता है, बाय लगा दिया जाता है मैक्सिमम कई कई सेंटेंसेस में, कई जगह वाई नहीं भी लगता, लेकिन यहाँ पे अपना यानी 100% रोल ही सब्जेक्ट का है, वो अपना जो भी डूअर का रोल है इज प्लेइंग इन अ वेरी वेल मैनर्ड वे, तो वी हैव टू डू। तो स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा पैसिव वॉइस का, या क्रिस्टल क्लियर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब देन V3। अब आंखें बंद करके यहाँ पे V3 लगाना है जब हमें पैसिव वॉइस की पहचान करनी है या पैसिव वॉइस में कन्वर्शन करना है। तो जो हमारा एक्टिव वॉइस में दैट कैन बी V1 V2 V3 बट नॉट, लेकिन यहाँ एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल है कि V3 ही होगा जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्शन कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले you should be crystal clear about tenses, you should be crystal clear about subject verb relation topic, and I think base should be crystal. Now just look at the next. I think structure of passive voice is crystal clear. Subject यानी जो object जहाँ subject बनाता है, you have to look at the thing. अब हमने जो पैसे बनाया, mango is eaten by Ram. I think crystal clear so far as structures of active and passive voice are concerned. कोई डाउट नहीं है मेरे को लगता है। अगर तुम्हें ये बेस नहीं पता तुमको जी हमने जी एक्टिव पैसिव कर लिए, वी आर वेरी परफेक्ट मास्टर्स ऑफ एक्टिव पैसिव। नो डियर स्टूडेंट्स, yes, you are not able to just achieve the goal of learning voice। दोनों वॉइस में जाना है, एक्टिव पे भी और पैसिव पे। देखिए उस कॉन्सेप्ट
को पहले समझना है, then just move into detail. So now just look at rule number 1 clear हो चुका होगा आपको, subject object object subject. So जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, एनी फॉर्म ऑफ मेनली यहाँ पे आपको आएगा हेल्पिंग वर्ब विल बी कन्वर्टेड इनटू, यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझ लेना। कोई भी फॉर्म जो होगी मेन वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब की नहीं, यहाँ पे यू शुड बी एबल टू लुक एट, अपने आप एडिट करना सीखो। We will create troubles for you while we teach, ताकि तुम अपने आप एडिटिंग करना सीखो कि क्या करना है। इंट्रो में आपको बेटे बताया कि जब पैसिव हुआ है, आंखें बंद करके हमें पता है कि मेन जो वर्ब होगा वो B3 में होगा। तो आई थिंक देयर इज नो डाउट, पर इसके लिए भी V1 V2 V3 about the thing. For that you have to learn a lot. You have to just spare time to learn this very important language in a very fine way. So V3 होगा। तो now just look at the next, कुछ personal pronoun। पर्सनल प्रोनाउन भी चेंज करते हैं जब हम एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन आई थिंक यू आर क्रिस्टल क्लियर। ये आपने, you must have done this topic in a very elaborated way। अब थोड़ा सा पिक मैं दे रही हूँ इसका, जो आपको लुक एट कि कैसे कन्वर्शन होता है। तो अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट अगर आए होता है, तो पर्सनल की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो मी बन जाए, दैट विल टेक द शेप ऑफ फॉर्म ऑफ मी। तो जस्ट लुक एट सेकंड वन। तो he will take form of him। जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ही होगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू हिम। तो अब चलिए she will be in the conversion of her, we, us, they, them। देखिए, I think very technical language is there to look at this particular personal pronouns, I, me। अब देखिए, I का मतलब क्या होता है, अगर हिंदी करें इसकी मैं, तो अगर मी बना तो मुझे, just look at the conversion। अगर आई थिंक देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसलेशन मेथड, लेकिन अगर आप रूट लेवल पे समझना चाहते हो, यू शुड बी एबल टू लुक एट द थिंग। कोई आई थिंक आपको नहीं रोकेगा अगर डीप करना चाहते हो ट्रांसलेशन मेथडोलॉजी से। तो देखिए, आए होता है मैं, मी होता है मुझे। तो नाउ ही, इफ वी लुक एट द ही, और उसे अगर हिंदी करें, और हिम वह, शी, ये अगर सब्जेक्ट शी है तो इसका मतलब यू शुड बी एबल टू लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट अगेन, उसे अगर वो आई थिंक फीमेल है, या यू हैव टू लुक एट द जेंडर, मेल ही, फीमेल शी, तो दोनों का मतलब उसे होता है। और अगर जो ही की कन्वर्शन होती है हिम में, जब ऑब्जेक्ट बनता है सब्जेक्ट से, वो वह की फॉर्म ले लेता है। ऐसे ही अगर शी की कन्वर्शन होती है ऑब्जेक्ट फॉर्म में, हर की फॉर्म ले लेते हैं, वो भी उसी को भी वह बोला। वी, इफ वी लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग, वी होता है हम, और इस अस होता है हमें। तो नाउ आई थिंक यू आर क्रिस्टल क्लियर। दे, उसे, और उन्हें, मतलब यू हैव टू लुक एट दिस पर्टिकुलर concept in a very different way। No personal pronouns होते हैं that takes conversion in a very different order। उसके साथ उसका मीनिंग भी आपको क्लियर होना चाहिए। Then only you be able to look at this particular topic in a, I think, good way। Otherwise
You can never ever be able to understand. Now just look at the thing. अब ये you जो होता है वो you ही रहता है. Object अगर you होता है, object जब उसको बनाते हैं वो you की फॉर्म में ही रहता है. ये that is also a part of personal pronoun. So now just look at this particular it. अगर it है subject, अगर हम object बनाते हैं तो वो it ही रहेगा. There will not be any conversion. तो जैसे इसका मतलब it का मतलब ये, इसका मतलब हो जाएगा इससे. I think crystal clear. फिर मैंने यहाँ तुम कहा, यहाँ तुम्हें. So now I think you are crystal clear about this particular point. अगर example में देते हैं कि अगर example देते हैं he is bitter. अब ये देखिए he is bitter यहाँ पे passive voice है. passive voice कैसे हमने recognition कर लिया? तो he है यहाँ पे subject और यहाँ पे अब उसको हमने क्या बनाया पैसिव वॉइस में, तो आप देखिए उससे यानी is हेल्पिंग वर्ब है. V3 हमारा ऑलरेडी परमानेंट सा रूल है, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं V3 तो आना ही आना. यहाँ पे पैसिव क्यों माना हमने? अब सब्जेक्ट तो लिविंग है यहाँ पे भी, लेकिन कर कुछ नहीं रहा, डूअर नहीं है. सब्जेक्ट लिविंग होने से सिर्फ 10% फर्क पड़ता है, चाहे वो नॉन लिविंग भी हो 10% ही उसका रोल होता है. रेस्ट डिपेंड 90% डिपेंड्स अपॉन वेदर